زمانے کی وہ لڑکی ہے جو اکلوتی لڑکی ہے جس کے کئی باپ ہیں. باپ نے اپنی بیٹی کو بڑے پیار سے پالا ہے, بڑی محبت سے پالا ہے. پالنے کے بعد جوان ہو جاتی ہے, اس نے ایک رشتہ ڈھونڈ لیا ہے. لڑکا بھی نمازی ہے, لڑکی بھی نمازی ہے, لڑکا بھی وفادار دیندار, لڑکی بھی وفادار دیندار ہے. اللہ اللہ, اب اس لڑکی کی جب شادی ہو جاتی ہے, باپ بڑی محنتیں کرتا ہے. روزانہ بیٹی کو بٹھا کے کہتا بیٹی سون, میں تو اس کی امانت تھی, میں تو تجھے پال رہا تھا, تو اس کی امانت تھی, میں تیری حفاظت کر رہا تھا. بیٹی سن, نبی نے فرمایا ہے عورتوں پر سب سے زیادہ حق اس کے شوہر کا ہے. ہیلو گائز, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے ہیں سب لوگ؟ امید ہے خیریت سے ہوں گے, خوش ہوں گے, ٹھیک ٹھاک ہوں گے. آج ہم جس ویڈیو پہ ریئیکٹ دینے والے ہیں, ایک صحابی رسول کا جو ہے وہ واقعہ ہے کہ ان کے والد صاحب کا فوت ہو جاتا ہے اور ان کا شوہر جو ہے وہ باہر کمانے کے لیے جاتے ہیں اور باپ کو دیکھنے کے لیے بغیر اجازت اپنے شوہر کو جو ہے نہیں جاتی ہیں, جو ہے اپنے والد صاحب کو دیکھنے کے لیے. ان کا جنازہ بھی ہو اور مدفن بھی ہو جاتا ہے, پھر بھی نہیں جاتی اپنے شوہر کے بغیر اجازت کے. تو اسی چیز پہ آج ہم ریئیکٹ کرنے والے ہیں. آپ بھی اس ویڈیو کو دیکھیے, ہماری پیاری ماں بہنیں جو ہیں وہ بھی دیکھیے, انشاءاللہ آپ لوگ کو بڑا اچھا لگے گا. تو میں سنی مدینہ منورہ سے ایک اور ویڈیو میں خوش آمدید کرتا ہوں. چینل پہ نیا ہے تو چینل کو سبسکرائب کر لیں. چلتے ہیں آج کا ویڈیو شروع کریں. نبی کے زمانے کی وہ لڑکی ہے جو اکلوتی لڑکی ہے جس کے کئی باپ ہیں. باپ نے اپنی بیٹی کو بڑے پیار سے پالا ہے, بڑی محبت سے پالا ہے. پالنے کے بعد جوان ہو جاتی ہے, اس نے ایک رشتہ ڈھونڈ لیا ہے. لڑکا بھی نمازی ہے, لڑکی بھی نمازی ہے, لڑکا بھی وفادار دیندار, لڑکی بھی وفادار دیندار ہے. اللہ اللہ, اب اس لڑکی کی جب شادی ہو جاتی ہے, باپ بڑی محنتیں کرتا ہے. روزانہ بیٹی کو بٹھا کے کہتا بیٹی سون, میں تو اس کی امانت تھی, میں تو تجھے پال رہا تھا, تو اس کی امانت تھی, میں تیری حفاظت کر رہا تھا. بیٹی سن, نبی نے فرمایا ہے عورتوں پر سب سے زیادہ حق اس کے شوہر کا ہے, مردوں پر سب سے زیادہ حق اس کی ماں اور باپ کا ہے. کہا باپ ٹھیک ہے, کہا بیٹی سن, اگر تیرا شوہر ایک طرف کھڑا ہو, تیرا باپ ایک طرف کھڑا ہو, شوہر کہے میری سن اور میں کہوں تو میری سن, بیٹی اپنے باپ کی مت سننا, اپنے شوہر کی سننا. اس لیے شوہر کا حق زیادہ ہے باپ سے بھی. اللہ اللہ, بیٹی کی رخصتی ہو گئی ہے, بیٹی کا نکاح ہو گیا ہے, بیٹی کی شادی ہو گئی ہے. جب باپ نے اپنی بیٹی کا ہاتھ پکڑا اور پکڑنے کے بعد شوہر کے ہاتھ میں ہاتھ دے دیا, آنکھوں میں آنسو ہے, اور داماد سے کہتا سن بیٹا, میں نے اپنی بیٹی اکلوتی بیٹی کو بڑے پیار سے پالا ہے, بڑی محبتوں سے پالا ہے. میرے لال, ہو سکتا ہے اس سے کہیں غلطی ہو جائے, ہو سکتا بھول چک ہو جائے, تو اسے خدا کے واسطے معاف کر دینا, مگر میری بیٹی کو رلانا مت, میری بیٹی کو تکلیف مت دینا. ارے یہ باپ ہے, باپ اپنے داماد کے سامنے ہاتھ جوڑ کے کہہ رہا ہے اللہ اللہ. بیٹی چلی جاتی ہے اور بیٹی سے باپ نے کہا بیٹی سنو, مجھ سے زیادہ حق تیرے شوہر کا ہے, شوہر کی اجازت کے بغیر گھر سے قدم مت نکالنا. بیٹی بولی ابا جان ٹھیک ہے. بیٹی چلی جاتی ہے, اپنی سسرال میں رہتی ہے, تیسرا کوئی نہیں ہے, لڑکا لڑکی ہے, بڑے پیار سے رہ رہے ہیں. کچھ دن گزر جاتے ہیں, لڑکی روزانہ قرآن کی تلاوت کر کر کے دعائیں کرتی ہے, مولا میرے شوہر کی عمر اور عزت میں برکتیں عطا فرما دے. لڑکی بھی دعائیں کر رہی ہے, لیکن کچھ دنوں کے بعد شوہر کا کام بند ہو جاتا ہے. شوہر پریشان ہونے لگتا ہے, اپنی بیوی سے کہتا ہے میرا کام نہیں چل رہا ہے, میں پریشان ہوں, کیا کروں, فلاں جگہ یہ کام زیادہ ہے, اگر اجازت ہو تو وہاں چلا جاؤں. بیوی کہنے لگی میرے سرتاج جیسے تمہاری مرضی, جس میں تم خوش ہو اسی میں میں خوش ہوں, اگر تمہاری یہی مرضی ہے تو تم چلے جاؤ, میں تمہیں اجازت دیتی ہوں. اللہ اللہ, لیکن شوہر کہنے لگا بیوی سنو, تمہارا میکہ بستی کا ہے, تم تو اپنے میکے کو چلی جاؤ گی, میرے گھر میں چراغ کون جلائے گا, میرے گھر میں روشنی کون کرے گا. اس وقت یہ لائٹ کا زمانہ نہیں تھا, چراغ کا زمانہ تھا. کون ڈبی یہ چراغ جلائے گا. وہ لڑکی کہنے لگی میرے سرتاج اب میرا جینا مرنا یہی ہے, میرا گھر بھی یہی ہے, تمہارے ساتھ
औलाद ही तो हूँ मैं तो अपने बाप की जिम्मेदारी में थी, मगर बाप ने अब तुम्हारे हवाले कर दिया है। इंशाअल्लाह मैं तुम्हारी इजाजत के बगैर घर से कदम नहीं निकालूंगी। मैं तुम्हारे घर को रोशन करूंगी, तुम्हारे दिल को भी रोशन करूंगी। अल्लाह अल्लाह, कुछ दिन गुजरते हैं, कुछ दिनों के बाद वो लड़का चला जाता है, बाहर काम करने चला जाता है। इधर लड़की घर में अकेली रह जाती है, रोजाना कुरान की तिलावत कर दुआएं कर रही है, मौला मेरे शौहर की कमाई और उम्र में बरकतें अता फरमा दे, ऐ अल्लाह बरकतें अता फरमा दे। प्यारो, वो जमाना मोबाइल और फोन का नहीं था, वो जमाना टेलीफोन का नहीं था, लेकिन दुआएं कर रही है, मौला मेरे शौहर की उम्र में और कमाई में बरकतें अता फरमा दे। आज कहाँ है मेरी बहनें ऐसी जो अपने शौहरों के लिए दुआएं करती हुई दिखाई दे? नमाज नहीं पढ़ती तो दुआएं क्या करेगी? लेकिन सुनो, वो लड़की दुआएं करती जा रही है, उधर शौहर कमाता चला जा रहा है। कुछ दिनों के बाद इस लड़की के बाप की तबीयत खराब हो जाती है, इतनी तबीयत खराब हो जाती है, लेने के देने पड़ जाते हैं। लोग मोहल्ले वाले देखने जा रहे, अयादत के लिए जा रहे। इस लड़की को पता चला मेरे बाप की तबीयत खराब है, मेरे बाप की तबीयत नासाज है, लेकिन लड़की परेशान हो जाती है। या अल्लाह, मेरे घर में तो मेरा शौहर भी नहीं है, मैं किससे इजाजत लूं? मेरा शौहर नहीं है, इजाजत किससे लूं? और इजाजत के बगैर बीवी को घर से निकलना जायज नहीं है। एक तरफ बाप है, एक तरफ रसूल पाक का फरमान है। अल्लाह अल्लाह, वो लड़की घर ही घर में रो रो के दुआएं कर रही है। बाप की बहुत ज्यादा लाडली प्यारी थी, मौला मेरे बाप को ठीक कर दे। इतने में छोटा भैया आ जाता है, कहता बहन अब्बा की तबीयत खराब है और अब्बा तुम्हें याद कर रहे हैं, चलो चलो अब्बा बुला रहे हैं। बहन पता नहीं बचे या ना बचे। बहन ने जब इतना सुना तो भाई को चिपट गई, कहने लगी भैया ऐसा मत कहो कि बचे या ना बचे, भाई ऐसा मत कहो, लेकिन ये बताओ नबी ने फरमाया है कि औरत को बीवी को शौहर की इजाजत के बगैर घर से निकलना जायज नहीं है। कहा भैया मैं किससे इजाजत लूं? मेरा शौहर तो घर पे है ही नहीं, फोन का मोबाइल का भी तो जमाना नहीं था। अल्लाह अल्लाह का भैया मैं घर से कदम नहीं निकालूंगी। अब वो लड़की घरी में रोती हुई रह गई, रोते रोते दुआएं कर रही है। तुम्हें क्या पता है लड़की कितनी ममता करती है, कितना प्यार करती है। घर में पड़ोस में रहने वाला बेटा अगर किसी के बाप की तबीयत खराब हो जाए इतनी जल्दी नहीं पहुंचता है जितनी जल्दी बेटी अपने घर से दूसरे गांव से आ जाती है, बाप और माँ को देखने आ जाती है। इधर इतनी लाडली बेटी घर ही घर में तड़प रही है, मौला मेरे बाप को ठीक कर दे, दुआएं कर रही है, कुरान पढ़ पढ़ के दुआएं कर रही है। इधर बाप की बहुत ज्यादा तबीयत खराब होने लगी, बाप को हिचकियां आने लगी। बाप बोला मेरी बेटी को मुझे दिखा दो, मेरी बेटी से दो बातें करा दो। अरे बाप अपनी बेटी के लिए रह नहीं सकता था, 15 दिन से ज्यादा बाप अपनी बेटी को देखे बगैर रहता नहीं था। कह रहा सुनो मेरी बेटी को मेरे पास ला दो, मेरी बेटी से दो बातें करा दो। पता नहीं बाप क्या कहना चाहता था। अब माँ ने भेजा कि जा बेटा चला जाओ। भैया रोता हुआ आ गया, कहने लगा बहन अब्बा की आखिरी ख्वाहिश है वो सुन लो, अब्बा की जान लबों पे है वो सुन लो। उन्हें पानी तो नहीं ले रहे, कोई चीज नहीं ले रहे, यही कह रहे मुझे मेरी बेटी ला दो, मुझे मेरी बेटी दिखा दो। अरे मेरी बेटी से दो बातें करा दो। इधर बाप परेशान है, उधर बेटी खेल के रह जाती है। अल्लाह ये कैसा इम्तिहान है, कैसे इम्तिहान है। उस बेटी को याद आ गया अपनी रुखसती का वो वक्त जब बाप ने कहा था बेटी एक तरफ तेरा बाप हो, एक तरफ नबी का फरमान हो, तो बाप को मत देखना, नबी के फरमान को देखना। अब क्या करे अब्बा जान मैं कैसे आऊं, मेरा तो शौहर है ही नहीं। लड़की घर में चकरा करके दीवार से टिक जाती है, भैया मैं घर से बाहर नहीं जा सकती। ओ मेरी बहनों सुनो, आज ठेलों में मेलों में बाजारों में मज़ारों पे कहाँ
घूमती फिरती हो, अपने शौहरों से इजाजत नहीं लेती हो, शौहर की इजाजत के बगैर घर से निकलना जायज नहीं है। लेकिन जरा सुनो, भैया रोता हुआ चला गया। माँ ने कहा क्या बात है? कहा माँ बगैर इजाजत बहन नहीं आएंगी, उनके शौहर नहीं है। लड़की ने अपनी आंखें लाल कर ली रोते 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 रोते। थोड़ी देर के बाद बाप का इंतकाल हो गया, बाप दुनिया से रुखसत हो गया। लड़की को जब पता चला, लड़की चटाई पे बैठी की बैठी रह गई। मौला, जिस बाप ने मुझे इतने दिनों पाला और आज आखिरी वक्त में याद किया, मौला मेरे सामने कैसा इम्तिहान। मैं बेटी होकर के बाप से बात नहीं कर पाई। बाप हमेशा के लिए आंखें बंद कर गया। बेटी सकते में रो रही है, इधर बाप के जनाजे की तैयारी। माँ ने कहा सुनो सुनो, बाद में गुस्ल देना, मेरी बेटी का इंतजार करो, हो सकता आती हो। लेकिन जब देखा तो खाली भाई आ गया, बहन नहीं आई। ओ इस्लाम की शहजादी सुनो, खाली भाई आ गया, बहन नहीं आई। बहन चटाई पे फैली पड़ी है। अब्बा दुनिया से चले गए। उसे वो दिन याद है कि जब मेरे बाप ने रुखसती की थी तो इस बाप ने ऐसी चीख मारी और बेहोश होकर पीछे को गिर पड़ा। ये कहता था मेरा आज घर से नूर जा रहा है, मेरी बेटी जा रही है। अल्लाह अल्लाह, वो बातें याद कर कर के रो रही है। शौहर उधर बेचारा काम कर रहा है, उसको क्या पता मेरे घर में क्या बात है। अब जब बेटी नहीं आई, गुस्ल दे दिया गया, कफन पहना दिया गया। बाप का चेहरा बेटी कैसे देखे, घर से कैसे आए। आज की अगर बहन होती तो क्या रुकती। लेकिन जरा सोचो, वो इस्लाम की शहजादी जैसे ही गुस्ल दिया, कफन पहनाया, जनाजा लेकर के नमाज जनाजा के बाद लेकर के चलो कब्रिस्तान। मालिक सुना, कब्रिस्तान बेटा कह दे इनसे, कब्रिस्तान को बाप का जनाजा बाद में जाएगा, पहले बेटी के घर को बाप का जनाजा जाएगा। अरे बेटी के घर को जाएगा, इसलिए बाप ने नहीं देखा, कम से कम बेटी ही अपने बाप को देख ले। अरे क्या मंजर होगा, बाप का जनाजा कब्रिस्तान नहीं, बेटी के घर को चला, बेटी के घर को जनाजा जा रहा है। अल्लाह अल्लाह, जनाजा बेटी के घर पहुंचा, सारे लोग बाहर हो गए। लड़की तड़प के अपने बाप को चिपट गई और रो रो के कहने लगी, अब्बा मुझे कैसे इम्तिहान में तुमने ये बातें बताई थी। अब्बा मुझसे 2 मिनट के लिए बातें कर लो, मेरे अब्बा 2 मिनट के लिए आंखें खोलो। मगर बाप तो दुनिया से जा चुका था, बेटी अकेली अपने बाप से बातें कर रही है, रो रही है, बातें कर रही है। अब्बा जान, अब मैं किसको बाप कहूंगी, आके खोलो। अब बाप दुनिया से जा चुका, बेटी आ गई। बेटी ने पाँव को बोसा दिया और पाँव पकड़ के अल्लाह की बारगाह में दुआ कर दी, बोला ये मेरा बाप है, मैं इसकी बेटी हूँ, मगर नबी के फरमान को मैंने न छोड़ा। गुनाहगार सही, बदकार सही, मौला मेरे बाप की मग़फ़िरत फरमा दे, मेरे बाप के गुनाह माफ कर दे। ये बेटी अपने बाप के लिए पाँव पकड़ के दुआएं करती रही, पाँवों का बोसा दिया, कहा ले जाओ। बाप का जनाजा कब्रिस्तान चला गया, अल्लाह अल्लाह दफना दिया गया। लड़की घर में अकेली है,
शौहर को पता नहीं क्या हो रहा है। लड़की आधा खाना कभी आधा टुकड़ा खा ले, रोजाना रात को कुरान पढ़ पढ़ के दुआएं कर रही थी, मौला मेरे शौहर की कमाई और उम्र में बरकतें अता फरमा और मेरे बाप की मग़फ़िरत फरमा, मेरे बाप की मग़फ़िरत फरमा। अगर ऐसी लड़की बन जाओ तो ये शौहर जहां तुम्हारा पसीना गिरेगा, शौहर अपना खून बहा देगा, खून बहा देगा। अल्लाह अल्लाह, वो लड़की दुआएं कर रही है, बेचारी सूख के कांटा हो गई है, रोजाना रो रो के बाप को याद करती है। बोलो ऐसे कैसे खा सकती है, सूख के कांटा हो गई। उधर शौहर को पर शौहर ने सोचा चलो मेरी कमाई हो गई, अब मैं अपनी बीबी से मिलने चलूं। शौहर ने अपनी बीबी की मर्जी की चीजें खरीद ली। हर शौहर जानता मेरी बीबी की क्या चॉइस है, उसने खरीद ली कि मैं अपनी बीबी को ये दूंगा, अपनी बीबी को ये दूंगा। उस गरीब को क्या पता था मेरे घर में कयामत सुगरा बरपा है। उस बेचारे गरीब को क्या पता था मेरी बीबी के साथ में क्या गुजरा। वो काफी सारा सामान लेकर के आया, उसने सोचा दरवाजे पे खड़े होकर आवाज दूंगा, देखूंगा पहचानेगी या नहीं पहचानेगी। बेचारा अपनी मोहब्बत प्यार की बातें दिल ही दिल में बना रहा था, बिगाड़ रहा था, बना रहा था, बिगाड़ रहा था। मगर उस गरीब को क्या पता था तेरे घर में क्या हुआ है। अल्लाह अल्लाह, ये अपने हाथ में बीवी के लिए सामान लेके पहुंचा। दरवाजे के अंदर घुस के इसने आवाज दिया, कनीज़े फातिमा, ओ कनीज़े फातिमा। जब इसने आवाज दी तो बीबी ने पहचान लिया कि ये तो मेरे सरताज की आवाज है, ये तो मेरे शौहर की आवाज है। बीबी अपने शौहर को देख के दौड़ पड़ती है, आंखों में आंसू है, और जा करके बीवी अपने शौहर के गले में हाथ डाल के सीने पे सर रख के इतना रोई, इतना रोई, कब आने लगी, पूरे दिल की भड़ास निकाल ली। मेरे सरताज, मेरे सरताज, तुमने आने में बड़ी देर कर दी। शौहर वाला देख, मैं तेरे लिए ये लाया हूँ, मैं तेरे लिए ये वो सब कुछ लुट चुका है। मेरी दुनिया बर्बाद हो गई, मेरा सब कुछ खत्म हो गया, मेरी दुनिया लुट चुकी है। इतना रोई, इतना रोई। शौहर ने सब छोड़ के बीवी को संभाला, कहा बोलो। तो वो शौहर कुछ गलत समझा, कहने लगा बोलो तुम पे किसने जुल्म किया है, बताओ किसने बर्बरियत के पहाड़ तोड़े। बोलो जहां तुम्हारा पसीना टपकेगा वहां पे मैं अपना खून बहा दूंगा, बताओ हुआ क्या है। अरे क्या हुआ? बीबी कहने लगी सरताज जैसे तुम समझ रहे हो वैसे कोई बात नहीं है। कहा फिर क्या बात है? कहा वो मेरा बाप जिसने मेरा हाथ पकड़ के तुम्हारे हाथ में हाथ दिया था। कहा ठीक है। कहा वो मेरा बाप दुनिया से चला गया, वो मेरा बाप दुनिया से रुखसत हो गया। कहा सुनो सरताज, रुखसत हो गया, मुझे याद करते करते चला गया। 3 मर्तबा मेरा भाई बुलाने आया, मैं अपने बाप की 2 बातें नहीं सुन पाई, पता नहीं क्या कहता। मेरा बाप मुझे बगैर देखे आंखें बंद करके चला गया। मेरा बाप अब इस दुनिया में नहीं रहा। शौहर बोला तुम गई क्यों नहीं? कहा सरताज तुम घर में नहीं थे, मैं इजाजत किससे लेती? तुम्हारी इजाजत के बगैर घर से कदम कैसे निकालती? अल्लाह अल्लाह, शौहर ने सीने से लगाया। कहा पगली मैं तुझे कोई मना थोड़ी करता रही, तो बाप का मामला था, बाप का। चलो अभी चलो, चलो अभी चलो। बीबी
बोली नहीं, तुम सफर से आए, थोड़ा कुछ खा लो। कब खाने को देख रही हो? बीबी बोली मैंने भी कुछ दिनों से लुकमा नहीं खाया, कोई लुकमा नहीं खाया, हो सकता तुम्हारे साथ में कुछ खा लूं। शौहर रुक गया, दोनों मियां बीबी ने खाया और खाने के बाद जब घर गए, के कदमों पे बेटी गिर गई, कहने लगी माँ मुझे माफ कर दो। अरे बेटी कितना माँ से प्यार करती है, सारे अपने दुख दर्द सब कुछ बता डालती है, कहती है माँ मुझे माफ कर दो माँ। कहा बेटी तूने सही किया है, नबी के फरमान पे अमल किया है। शौहर बोला माँ मुझे पता नहीं था, अगर पता होता तो मैं खुद भी आता। मोहल्ले की औरतें यहाँ जमा हो गई और कहने लगी देखो ये लड़की कितनी बुरी है, ये लड़की कितनी कठोर है, ये लड़की कितनी जालिमा है, ये लड़की कितनी कट्टर दिल की है। इसका बाप याद करते करते चला गया, मगर ये अपने बाप को देखने नहीं आई। तो उस लड़की ने जब इतना औरतों ने कहा, इतने में मेरे नबी आ जाते हैं। कहा सुनो, इस लड़की ने वो काम किया है जो इसके लड़कों ने काम नहीं किया है। अरे इसका बाप गुनाहों की वजह से जहन्नम में जाता, मगर इस लड़की ने जो दुआ की है, इस लड़की की दुआ की वजह से इसका बाप जन्नत में है। समझ में आ गई ये बात? प्यारो, मेरी गुफ्तगू खत्म, मेरी तरफ तवज्जो दो। मेरी गुफ्तगू खत्म होने के लिए जा रही है, मगर इसलिए बता रहा हूं, देखो इंसान बनो, इंसान। क्या बनो बोलो? और इंसान वो होता है जो किसी जानवर को भी नहीं सताता। इंसान वो होता है जो किसी कीड़े मकोड़े को भी परेशान नहीं करता। तो वो अपनी बीवी को क्या सताएगा, अपनी बीवी को क्या तकलीफ देगा?